Hello, my little mathematicians. How are you all? I hope you all are good. So, this is Kanchan ma'am back here again with an amazing session of measurement on Swiftlearn YouTube channel, which is India's most sincere learning destination, providing you classes for first to 10th. Okay, or I can say that the one and only destination providing you the concept based learning. ओके सो बिफोर गोइंग टू द चैप्टर विच इज मेजरमेंट जिसका हम ऑलरेडी एक बात कर चुके हैं दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग जिसमें मैंने आपको कुछ शॉर्टकट्स बताए थे so today again we will be continuing the same session but before that let me tell you about Swiftlearn. So Swiftlearn is providing 100% live and interactive classes. It means that within the class you can ask your doubts, your queries, and your teacher is going to solve them right there. Personalized attention batch with maximum 6 students. We don't take more than 6 students a single batch in a single batch. And according to your convenience, you can take a batch of 1:1. Okay. A dedicated academic team is also there, which is on the whole working on your progress. Means how you are doing in class, how you are doing in homeworks, how you are doing in monthly assessments. All the things are, tracked by a mentor team. Okay, after that syllabus, so CBSE, ICSE, State Board, all the syllabus are covered here. Now, when I talk about detailed progress report, so it is nothing but PTM, that is called Parents Teacher Meeting, where we are going to discuss about your progress, actually, how you are progressing. Or progress kar bhi rahe hain ya nahi? Is there any knowledge gain or not? Okay. After that, once you will be in the Swift Learn, you will be called Swift Learner. Okay, so once you will be Swift Learner, you can be a part of this series that is called Swiftlearn Academic Test Series. इस Swiftlearn Academic Test Series के थ्रू आप अपनी ही क्लास की या Swiftlearn में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके सेम क्लास में यू कैन compete with them. आपको अपना स्कोर बोर्ड की हेल्प से आपका लीडर बोर्ड रेडी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि लीडर बोर्ड में वेयर यू आर. ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको कंसेप्ट तो पढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद आपको बुक्स के क्वेश्चंस भी करा दिए, उसके बाद इट टाइम्स टू हैव द प्रैक्टिस टेस्ट. जो भी प्रैक्टिस टेस्ट करने हैं मतलब एमसीक्यूज हैं, सब्जेक्टिव हैं, वी विल बी प्रोवाइडिंग यू ऑल दोज और वो आपके एंड पे प्रोवाइड कराए जाएंगे. मीन्स आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जस्ट क्लिक करके आप उसको कभी भी कर सकते हैं. राइट, सो दिस वाज इट ऑल अबाउट Swiftlearn. सो अगर आप Swiftlearn का एक पार्ट बनना चाहते हैं सो यू कैन बुक अ फ्री ट्रायल क्लास right here right now. Okay, for that you can go to the description box or simply अगर आप गूगल बाबा पे जाकर भी अगर आप www.swiftlearn.com टाइप करेंगे there also you can do it. So those who are new to the channel, they can subscribe us, they can press the bell icon so that you will never miss any update. It is very important. Otherwise जो भी यहाँ पे कुछ न्यू न्यू चलता रहता है ना आपके सारे अपडेट जो हैं वो मिस हो जाएंगे. ऑलराइट, हिट द लाइक बटन को आप हिट भी कर सकते हैं एंड यस कमेंट एंड शेयर तो बनता है भाई. जो भी अगर मैम के साथ क्वेरीज हैं, आपके कुछ स्पेशल डाउट्स हैं, यू कैन just drop them in the comment box and share it to your friends also guys. So all about measurements, we have already done a first part of this. जिन्होंने नहीं देखा है kindly do watch that also because तभी ये उसके continuation में समझ में आएगा. Okay, चलिए. Now, what are going to be the objective units of volume, measurement of volume, unit conversion, and fundamental operations? All right. So, what we have done in the last class, a car traveled 225 kilometer in 5 hours. How far it should travel in 2 hours? So, it's very simple. आपको पता है एक कार जो है वो 5 hours में 225 किलोमीटर ट्रैवल करती है. तो अगर मुझे 2 hours के लिए चाहिए तो बच्चों, तो 2 hours के लिए चाहिए तो क्या करेंगे, पहले 1 hour का निकाल देते हैं. आपको पता है यूनिटरी मेथड, कल भी आपको बताया है. जब आपके पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है और आपको वन क्वांटिटी के लिए पूछा है या आपको दूसरी क्वांटिटी के लिए पूछा है, मीन्स दैट आपको 5 hours का दिया हुआ है और आपको 2 hours का पूछा है. ऑलराइट, सो फॉर दैट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट फॉर 1 hour. तो 1 hour को निकालने के लिए आप सबको पता है क्या कर देंगे, डिवीजन. ओके, क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे और फिर 5 और फिर 2 hours का निकालने के लिए मल्टीप्लाई. तो जब आप इसका डिवीजन करेंगे, मैं इसको डायरेक्टली कर रही हूँ, आप इसको इस तरीके से करेंगे. चलिए आपके साथ मैं भी कर लेती हूँ. 5 4 20 हो गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 नीचे आ गया, 5 5 25. तो आर आंसर इज 45. तो मीन्स इट मीन्स दैट
द कार इज कवरिंग 45 किलोमीटर इन 1 आवर। ये हमने किससे निकाला? ये हमने 5 आवर वाले इंफॉर्मेशन से निकाला। नाउ सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट 2 आवर्स। तो नाउ यू हैव द data for 1 hour. Now you can find out the kilometers traveled for 2 hours. But just you have to multiply. It means that 45 multiplied by 2 will nothing but the 90 kilometer. Okay, so remember always one thing कि जब बहुत सारे से 1 का निकालना होता है तो you have to divide, और जब 1 से बहुत सारे का निकालना होता है तो you have to multiply. ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग लाइन शोज द वेट एट इक्वल इंटरवल्स। ये जो लाइन है ये इक्वल इंटरवल्स शो कर रही है। लेट मी टेक अ ब्लैक वन। ओके, नो 225 से 275 हुआ, 275 से 325 हुआ, तो 375 से 325 से कितना हो जाएगा? 375 हो जाएगा ग्राम, बिकॉज इक्वल है ना, और वो इक्वल आप देख सकते हैं कि कितना है, 50 ग्राम है। ओके, नाउ 325 से अगेन हमने 50 ऐड किया और इसमें हम 50 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 425 ग्राम। आई होप इट इज क्लियर। नाउ Madhya bought a packet of sugar. She used 3/5 of it to bake a cake. What she did? उन्होंने यूज किया 3/5 of that sugar. ओके, उनको नहीं पता क्वांटिटी कितना था, उनके पास जितना भी क्वांटिटी था उन्होंने उसका 3/5 यूज कर लिया टू बेक अ केक। अब उनके पास जो शुगर बचा है, मतलब इस शुगर, ये अगर शुगर का पैकेट है, इस पैकेट में से मैंने इतना बेकिंग के लिए यूज कर लिया, तो दे आर सेइंग दैट ये जो लेफ्ट पार्ट है ये कितना है? 300 ग्राम। ओके, सो यू हैव टू फाइंड आउट द ओरिजिनल वन। तो पूरा पैकेट में शुगर कितना था, अगर जो बचा हुआ है अभी, दैट इज 300, और यूज हमने 3/5 कर लिया। ऑलराइट, तो किसी भी सेंस में कर सकते हैं। देखिए, 3 आउट ऑफ 5, इसका मतलब है 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स, तो 3 पार्ट्स का कितना हो गया? 300। ओके, तो 5 पार्ट्स का कितना हो जाएगा? 500। सो सिंपल, आप इसको किसी भी सेंस में कर सकते हैं। ओके, ऑलराइट, ठीक है, चलिए। नाउ, हैव यू एवर सीन द प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल, हाउ इट इज रिटन? यस, कैसे लिखा रहता है? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 76.26 पर लीटर। अभी तो खैर बहुत ज्यादा हो गया, 100 से ऊपर हो गया, 76.26 पर लीटर। So what is the meaning of per liter? Means 1 liter is costing this much. Okay, it is often written like this. अभी तो 76.26 is not the actual price. The number changes with the change in price, but the liter remain the same. ओके, द लीटर रिमेन द सेम। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि अभी ये 102 हो गया है, तो 102 पॉइंट अगर 25 हो गया है तो पर लीटर, तो पर लीटर का मतलब क्या होता है कि ये जो 1 लीटर के हिसाब से दिस वैल्यू कैन बी चेंज, एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट द रुपीज। सो इट मीन्स दैट आई एम गेटिंग दिस मच ऑफ petrol or diesel by this amount. Okay, so the number changes. Okay, but what is the meaning of this liter? इस liter का meaning क्या होता है? It is nothing but the amount of space an object occupy. आपको पता है वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए what we use? liter. Okay, so it's very simple. किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना स्पेस है, कितना स्पेस है उसके अंदर, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। आई मीन, अगर मैं इस बॉटल की बात करूं, अगर मैं ये फेविकॉल वाले बॉटल की बात करूं, तो इसके अंदर कितना वॉल्यूम है, मतलब इसके अंदर कितनी स्पेस है कि मैं इसके अंदर कुछ रख सकूं, राइट? दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम। और उस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए व्हाट वी यूज? लीटर। Okay, so when we have to buy milk, it's half liter or 1 liter, and it's mean the volume of the milk is half liter and the 1 liter. Capacity is the same thing, the maximum amount something can contain. What is capacity? इसके अंदर कितना आ सकता है, इसके अंदर कितना आ सकता है टोटल। अगर ये आपके पास, ये मेरे पास बॉटल है, आपके पास ये सामने यू कैन सी अ वाटर टैंक, तो इस टैंक की कैपेसिटी कितनी होगी कि इसके अंदर कितना आ सकता है? मैक्सिमम अमाउंट जो भी होगा वो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, वाटर टैंक्स आर होम जनरली वी हैव 1000 लीटर्स के होते हैं, 500 लीटर्स की टैंक्स होती है ना छत पे, जिससे नीचे पानी आता है, बिकॉज ऑलवेज 24/7 आवर्स तो पानी आता नहीं है, तो आप पानी को स्टोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द मोटर, आप ऊपर उसको स्टोर करते हैं, देन यू कैन यूज इट थ्रू आउट योर डे। सो व्हाट इज दैट एक्चुअली, कि वो
जो आपने टैंकी रखा है, जो टैंक रखा है आपने, वाटर टैंक रखा है, उसका लीटर, उसकी कैपेसिटी कितनी है, दैट इज नथिंग 1000, और लीटर्स में भी हो सकती है, 500 लीटर्स में भी हो सकती है, इससे बड़ी भी टैंक्स हो सकती है। ओके, तो इसकी जो यूनिट होती है दैट इज नथिंग बट द मीटर क्यूब। ठीक है, तो जनरली हम उसको लीटर लेते हैं और मिलीलीटर लेते हैं। अब अगर मैं मिलीलीटर की बात करूँ, आपको कहाँ यूज होता है, देखो आप अगर अपने घर पे जो मिल्क आता है, अगर आप पैकेट वाला मिल्क लेते हैं तो उसमें हमेशा पीछे लिखा रहता है 500 ml या 1 लीटर या 2 लीटर, या आप कोई भी कैन लेते हैं जिसमें आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, बट अदरवाइज आप कोई भी कैन लेते हैं, कोई भी जूस लेते हैं, तो उसमें भी लीटर और मिलीलीटर मेंशन रहता है। तो व्हाट इज दैट, दैट इज एक्चुअली शोइंग द क्वांटिटी कि उसके अंदर कितना है। अब जैसे मैं आपको ये, अब मेरे पास ये एक सिरप का बॉटल है, टॉरेक्स जूनियर का फ्लेवर है, इसमें इसका जो आप लिखा हुआ है इसमें, लेट मी चेक कहाँ लिखा हुआ है, ऑल राइट, इसमें यहाँ फ्रंट पे लिखा हुआ है 60 ml, यहाँ पे फ्रंट पे लिखा हुआ है 60 ml। सो व्हाट इज द 60 ml, 60 ml इस बॉटल के अंदर, इस बॉटल के अंदर ये जो कप सिरप है, इस बॉटल के अंदर कितना मेडिसिन है, कितना लिक्विड फॉर्म में कितना मेडिसिन है, दैट इज कॉल्ड टू बी द मिली लीटर। वो इसका क्या हो गया, मेजरमेंट हो गया। तो अगेन वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम लीटर या मिलीलीटर यूज करते हैं। ओके, इज इट क्लियर। आप भी अभी आप क्या करेंगे, अपने घर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे, आप देख सकते हैं, और सबके पीछे मेजरमेंट लिखा रहता है, तो आप देखिए किसका मेजरमेंट ग्राम में है और किसका मेजरमेंट मिलीलीटर में है। ओके, और फिर आपको शायद बहुत इजीली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि मिलीलीटर हम कहाँ पर यूज करते हैं और ग्राम हम कहाँ पे यूज करते हैं। ओके, क्लियर है। तो चलिए, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, आपको ये कन्वर्जन याद रखना है। कैसे, लेट मी टेल यू, अभी हम इसका कन्वर्जन करेंगे। देखो वही वाली बात होगी जो हमने कल किया था, राइट। देखिए लीटर आ गया बेसिक, और यहाँ पे आ गया किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली। तो कल हमने क्या किया था, कुछ भी नहीं, एक बहुत सिंपल सा हमने एक फंडा पढ़ा था। व्हाट वाज दैट फंडा, व्हाट वाज दैट फॉर्मूला शॉर्टकट, किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग हॉट चॉकलेट या ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। तो ये आ गई आपकी बेस यूनिट, बेस यूनिट में आ गया आपका एल। तो किंग हेनरी, कल की क्लास में आपको मैंने ये पूरा स्टेटमेंट लिखा के बहुत अच्छे तरीके से बताया। तो ये हो गया किलो, ये हो गया हेक्टो, ये हो गया डेका, डेसी, सेंटी और मिलीमीटर। आप अपने शॉर्टकट्स बना सकते हैं, ठीक है, आप अपने शॉर्टकट्स भी बना सकते हैं। तो इससे कन्वर्जन ना बहुत ईजी हो जाता है। किलो से लीटर जाना है, कितने स्टेप गए, 1 2 3, तो 3 zeros लगा दीजिए। लीटर से मिलीलीटर जाना है, ml हो जाएगा, तो 1 2 3, 3 zeros लगा दीजिए। सेंटीलीटर जाना है, 2 स्टेप, जितने स्टेप जा रहे हैं उतने जीरोस लगा दीजिए अगर आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो। और अगर आप बैकवर्ड आ रहे हैं तो उतने आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, उतने आपको जीरो से डिवाइड कर देना है। ओके, तो स्टैंडर्ड यूनिट इसकी लीटर होती है, और 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। अब आप देख सकते हैं मेजर कैपेसिटी ऑफ स्मॉल, हम जो छोटी छोटी, देखो जैसे मैंने आपको ये बॉटल बताया, इसमें बहुत छोटा था, बहुत कम क्वांटिटी था, तो 60 ml था। ठीक है, 5 ml भी होता है, जैसे छोटा बहुत, 5 ml आपके 1 स्पून, जो आपका 1 स्पून होता है वो आपका अराउंड 5 ml होता है। ओके, जो आपका बिग स्पून होता है, स्पून की बात कर रही हूँ मैं, टेबल स्पून की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली स्पून की बात कर रही हूँ, दैट इज अराउंड 5 ml। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप स्पून में थोड़ा सा पानी लेंगे उसको पूरा फुल करके, तो वो कितना होगा, वो 5 ml होगा। तो वही 5 ml आप ऐड करके 1 लीटर की बॉटल भी तो भर सकते हैं, तो 1 लीटर बन जाएगा। तो मिली लीटर इज नथिंग बट द शॉर्ट, आप ये देख सकते हैं, ये है मेरे पास एक लोशन है, तो इसमें भी अराउंड इतना ही लिखा हुआ है, लेट मी चेक, इसमें 100 ml लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है तो 100 ml लिखा हुआ है। तो यही चीजें आपको, देखो मैथ्स इज एवरीवेयर, जहां भी आप देखोगे ना मैथ्स, हर ऑब्जेक्ट में आप देखेंगे तो ना क्या होता है, मैथ्स होती है। अब देखो हर ऑब्जेक्ट में, मैंने आपको यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट दिखाए, तीनों में मेजरमेंट लिखा है। कोई भी ऑब्जेक्ट आप उठा लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट, आप अपना टूथपेस्ट देख लीजिए, आप किचन का कोई देख लीजिए, आप अपने बॉक्स में तो खैर नहीं लिखा रहता, बुक्स में भी लिखा रहता है। ओके, सो ये सब जगह आपको मैथ्स ही मैथ्स, मैथ्स ही मैथ्स, एंड मैथ्स इज एवरीवेयर। Alright, that's why it's called the queen of all the sciences and king of all the subjects. Alright, so we commonly use kiloliter, हम किलोलीटर भी यूज करते हैं जब हमें बहुत ज्यादा कैपेसिटी को यूज करना हो। देखो डिपेंड करता है, हमें लीटर पता है, बट लीटर से जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारा काम चल जाए। ठीक है, तो हम इससे छोटी यूनिट्स भी ले सकते हैं टू मेजर द स्मॉलर थिंग्स, और हम इससे बड़ी यूनिट्स भी ले सकते हैं टू मेजर द बिगर थिंग्स। सो दैट इज द थिंग, जैसे हम ग्राम, केजी, मिलीग्राम, सेंटीग्राम हम यूज करते हैं, सिमिलरली लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, ये सारे कंसेप्ट यूज होते हैं।
ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। 1 डेका लीटर में 10 लीटर होता है, 1 हेक्टोलीटर में 10 100 होता है और 1 किलोलीटर में 1000 लीटर होता है। ऑल राइट, और ठीक है, ये आपको बताया हुआ है। तो देखिए बहुत सिंपल सा यह बात है, टू कन्वर्ट द लोअर यूनिट इनटू द बिग हायर यूनिट वी हैव टू डिवाइड, एंड टू कन्वर्ट द हायर इनटू लोअर वी हैव टू मल्टीप्लाई। ये हम किंग हेनरी डाइट वाले फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वाला कन्वर्जन अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास एक बहुत अच्छा सिंपल सा लॉजिक है। नाउ कन्वर्ट 700 सेंटीमीटर इनटू डेसीमीटर एंड मीटर। ठीक है, डेसीमीटर और मीटर में करना है। ऑल राइट, तो डेसीमीटर और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले अपना ही फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए, व्हाट वाज द फॉर्मूला? देखिए, आपके पास था किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ, यस, ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेसी है, ये बेस है, तो बेस से छोटा डेसी आएगा। ये क्या आएगा? सेंटीलीटर आएगा, और ये मिली लीटर आएगा। यहाँ पे पर डेकामीटर और मीटर को आपको सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे सेंटीमीटर वाली लाइन दे दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसमें डेसीमीटर कर दीजिए, यहाँ पे सेंटीमीटर कर दीजिए, और यहाँ पे मीटर तो आपका है ही, और ये बेस यूनिट है, मतलब दिस इज कॉल्ड मीटर। बेस यूनिट में आपका मीटर, लीटर और ग्राम आएगा, उससे हायर बड़ा चला जाएगा, उससे लोअर छोटा चला जाएगा। ठीक है, नाउ दे आर सेइंग दैट 700 सेंटीमीटर है आपके पास, तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर के लिए आप यहाँ पर है, तो आपको बैक जाना है। आप बैक जा रहे हैं ना, तो बैक जाने में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किससे? कितनी बार, कितने मूवमेंट हुए, कितने स्टेप गए, 2 स्टेप, तो मतलब 100 से। सो 700 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज नथिंग बट, आप यहाँ पे टेबल डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, 100 7 700, तो ये कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर को जब आपने मीटर में कन्वर्ट किया तो वो 7 मीटर आ गया। ओके, नाउ आपको डेसीमीटर में करना है, तो डेसीमीटर में करने के लिए देखो, डेसीमीटर में करने के लिए हमें कितना स्टेप मूव करना पड़ रहा है। आपके पास यहाँ पे 700 सेंटीमीटर था, 700 सेंटीमीटर से आपको डेसीमीटर में जाने के लिए कितना मूव करना पड़ रहा है, ओनली 1 स्टेप। तो ओनली 1 स्टेप बैक साइड मीन्स 10, तो मीन्स 700 विल बी डिवाइडेड बाई 10। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब लास्ट क्लास में 0 होता है तो हम उसको डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप डिवाइड भी कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 70 डेसीमीटर। क्लियर है? तो विद दिस किंग हेनरी वाला आप बहुत इजीली कर सकते हैं, या ये मैंने आपको बताया है कि क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू, वी विल नथिंग डू बट हम डिवाइड करेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए, ग्राम को अब देखिए, अगर डीजी लिखा होता तो वो डेसीग्राम होता, नाउ डीएजी लिखा हुआ है तो वो डेकाग्राम है। ओके, तो आपको ये ग्राम आपको दिया हुआ है, आपको उसको डेकाग्राम और हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करना है। बैक साइड जा रहे हैं, बैक साइड ही जा रहे हैं ना, देखिए, किंग हेनरी डाइड बेस यूनिट हॉट बाय ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। ठीक है, अब जी है तो सब में जी जी लगा दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे डी ए जी आएगा, ये याद रखिए, ये डी जी हो गया, ये सी जी हो गया, ये एम जी हो गया, और ये जी हो गया। अब आपको बोला है जी, ये बोला है जी को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में, तो जी को कन्वर्ट करना है डेकाग्राम में, तो कितना, बैक साइड कितना, 10। तो जब आप 1987 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा बच्चों, बताया था ना, जितने जीरोस हैं उतना शिफ्ट कर दीजिए पॉइंट। आप देखिए 1987, बहुत सारे मेथड्स हैं, देखो बच्चों 1987 है, इसको 0.0 भी लिख सकते हैं, कल मैंने आपको पॉइंट वाला मेथड भी बताया था। तो देखिए आप दो तरीके से कर सकते हैं, यू कैन डू इट बाय 2 मेथड्स, इधर यू कैन डिवाइड बाय 10। अब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको पता है कि जितने जीरो नीचे होते हैं उतना पॉइंट राइट हैंड साइड से लग जाता है। और अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं तो आप 1987.0 आप इसको लिख सकते हैं ग्राम, और आपको पता है क्योंकि आप बैक साइड जा रहे हैं तो आप 1 स्टेप जा रहे हैं, तो आप 1 स्टेप इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। यू कैन डू बाय ईदर मेथड। ऑलराइट, अब हेक्टोग्राम में चेंज करना है, तो हेक्टोग्राम के लिए हम भाई 10 मोर 10 मूव हो गए, मतलब 10 और 10 100 मूव हो गए, तो इधर यू कैन डिवाइड इट बाय 100, इधर आप पॉइंट को 2 आगे शिफ्ट कर लीजिए। दोनों केसेस में आंसर आपका 19.87 आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। तो आप कन्वर्ट करने के लिए आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 ग्राम में कितना होता है, 1/10। तो या तो आप डायरेक्टली 1987/10 कर लीजिए, या आप डायरेक्टली इसको
0.1 मतलब डायरेक्टली आप पॉइंट को शिफ्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, सो एक्सप्रेस इन हेक्टोमीटर एंड डेकामीटर, एक्सप्रेस इन हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम कर सकते हैं। आई होप अब तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट के लिए भी मैंने आपको बहुत अच्छा सा लॉजिक बताया था कि देखिए 2.76 है, ये किलोमीटर है। ऑल राइट, ये किलोमीटर है, आपको इसको हेक्टोमीटर में करना है। तो देखिए यहीं पे हेक्टोमीटर आता है, यहीं पे डेकामीटर आता है। ठीक है, पता है ना, किंग हेनरी डाइट, तो किलो हेक्टो डाइट। ठीक है, डेका। नाउ इसको किस पे कन्वर्ट करना है, हेक्टो में। आगे जा रहे हैं ना, आगे जा रहे हैं तो पॉइंट को भी आगे शिफ्ट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, 2.76 आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका 89.07 किलोमीटर। देखिए बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको 89.07 इंटू, क्योंकि आगे जा रहे हैं ना, किलो से डेका में जा रहे हैं, किलो से डेका में जा रहे हैं, तो किलो से डेका में जा, मैं डायरेक्ट डेका में कर रही हूँ, हेक्टो में मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया, दूसरा वाला मैं आपको डेका में बता रही हूँ। ऑलराइट, तो कितना चाहिए, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से। ऑटोमेटिकली जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सब आपने डेसिमल में सीखा हुआ है, ऑटोमेटिकली जब आप 100 से करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा 8907। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 00 दो के बाद पॉइंट लगाएंगे, ऐसे कर लीजिए। इधर आप इस पॉइंट को डायरेक्टली शिफ्ट कर दीजिए। आई होप समझ में आ रहा है। ओके, ओके माय लिटिल मैथमेटिशियंस। ओके, नाउ हेक्टोग्राम है और डेकाग्राम है, केजी है, केजी है। तो देखो अगेन, चलो एक बार फिर से डायरेक्टली बता देती हूँ, केजी देन हेक्टो केजी, आई मीन केजी नहीं, मींस हेक्टोग्राम, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम। ठीक है, तो केजी कितना था, 3.786 केजी था। इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्टोग्राम में। हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए कितना स्टेप चल रहे हैं, 1 स्टेप, तो पॉइंट को लाके बस 1 स्टेप आगे कर दीजिए, बन जाएगा 37.86। अब डेकाग्राम में आने के लिए कितने स्टेप चले, 1 स्टेप 2 स्टेप, तो बस ये जो पॉइंट है उसको 2 स्टेप आगे कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका 378.6 डेका। ओके, चलिए, यूजिंग डेसिमल नोटेशन एक्सप्रेस इन केजी, इसको केजी में करना है, इसको केजी में करना है। तो देखो ये तो ऑलरेडी केजी में है, इसको केजी में कर दीजिए, इसको केजी में कर दीजिए और इसको केजी में कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हेक्टोग्राम को आप किलोग्राम में कैसे लिखेंगे, देखो ये है किंग, ये है हेनरी, ये है डाइट, ठीक है, ये है हेक्टो, ये है डेका, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए। तो देखिए आपको ये दिया हुआ है 2, ये दिया हुआ है आपको 9, और ग्राम के नीचे दे दिया आपको 1। आपको इन सब को केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें केजी में एक्सप्रेस करना है, तो ऑलरेडी 18 केजी है। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास 18 केजी है, हम सबको केजी में कन्वर्ट करके हम ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, तो इसको करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको करने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 10 से। जब मैं हेक्टोग्राम को केजी में कन्वर्ट करूंगी तो मुझे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। और मैं क्या सोच सकती हूँ, देखो 2 को मैं 2.0 लिख सकती हूँ, 2 को आई कैन राइट 2.0, तो मुझे जीरो कितना शिफ्ट करना है, जीरो मुझे 1 शिफ्ट करना है, तो ये क्या बन गया, 0.20 केजी। बस एक बार एक समझ में आ जाएगा ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए 9 डेकाग्राम था, इसको मुझे केजी में कन्वर्ट करना है, तो कितना, मैं 9 को क्या रख सकती हूँ, 9.0 रख सकती हूँ। मुझे कितना शिफ्ट करना पड़ रहा है, 1 2, तो मुझे पॉइंट को 2 शिफ्ट करना है। तो अगर मुझे पॉइंट को 2 शिफ्ट करना है तो 1 मैं यहाँ शिफ्ट हुई और 1 मैं एक और आगे शिफ्ट हुई, मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। बट क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं था तो 0.09 बन जाएगा, तो ये बन गया 0.09 केजी, सब केजी में चल रहा है। अब ये 1 था, तो 1 के आने के लिए कितना स्टेप, 1 2 3 स्टेप, तो 1 था, 1 के पॉइंट यहाँ था, बाद में आप पॉइंट लगा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, इसको 3 स्टेप फॉरवर्ड करना है, 1 2 3, तो ये आ गया 0.00, तो ये आ गया 0.001, तो ये आ गया आपके पास। आप ऐड करेंगे, 18 के पास पॉइंट नहीं है तो आप लिख सकते हैं 18.000, फिर लिख सकते हैं 0.20, फिर लिख सकते हैं 0.09, और फिर आप लिख सकते हैं 0.001, तो ये बन जाएगा आपका 18.291 केजी। कितना सिंपल था। और अगर आप डायरेक्टली, अगर आप इतने बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं राइट, वो यहीं से देख लेंगे, ये है
इसको 0.2 लिख सकते हैं, इसको 0.09 लिख सकते हैं, इसको 0.001 लिख सकते हैं. दे कैन डायरेक्टली राइट 0.291 kg. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू ऑल द थिंग्स. ठीक है, अब ये ग्राम है, इसको आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है. डेसीग्राम है, सेंटीग्राम है, मिलीग्राम है. आप कर सकते हैं. ग्राम से आप आगे जा रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे और आप इसको भी इजीली कर सकते हैं. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फंडामेंटल ऑपरेशन इन मेट्रिक यूजिंग द डेसिमल नोटेशन. आप कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल था. इन्होंने बोला 10 किलोमीटर 5 हेक्टोमीटर और ये था, इसको ऐड करना था इससे. ऐसे तो ऐड नहीं होगा, तो हमने दोनों को पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को डेसिमल नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया. कैसे करते हैं अभी आपको जस्ट बताया. सबको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो. किलोमीटर बिगेस्ट यूनिट है ना, तो इसको भी किलोमीटर में चेंज कर दो, इसको भी. तो जब आपने इसको किया तो ऑब्वियसली 10 पॉइंट कितना आ जाएगा 525, क्योंकि हेक्टो डेकोमीटर, तो हेक्टो डेका और मीटर जा रहा है, और ये सिर्फ हेक्टोमीटर और मीटर जा रहा है, तो डेका की जगह 0. देखो, किलो होता है, हेक्टो होता है, डेका होता है, ठीक है, और मीटर होता है. तो ये तो किलोमीटर था, यहाँ पे 5 दे दिया. ठीक है, ये क्या दे दिया, हेक्टो. हेक्टो के नीचे आपने हेक्टो लिख दिया, मीटर के नीचे आपने मीटर लिख दिया. ये नहीं दिया था तो 0 और यहाँ पे पॉइंट. बस डायरेक्टली भी कर सकते हैं, है ना. बस उसके नीचे वो लिख दीजिए और पॉइंट लगा दीजिए, ऑटोमेटिकली वो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई करना. मल्टीप्लाई करना कल भी सिखाया था. नॉर्मल जैसे आज तक मल्टीप्लीकेशन करते आए हैं वैसे ही करना है. द मोमेंट यू विल गेट द आंसर, आपको क्या करना है, आंसर लिखना है. सबसे पहले आपने आंसर लिखा, दिस इज योर आंसर. लेट मी मूव दिस टू द अपर साइड. ओके, आपने ये आंसर लिखा, आपके पास आंसर आया 100224. दिस वाज योर आंसर. अब पॉइंट के बाद कितने डेसिमल वैल्यूज हैं, 2. तो मैंने आपको कहा था 2 के बाद अगर आप डेसिमल वैल्यूज लगाएंगे तो वो आपका बन जाएगा आंसर किस में, जिसमें दिया हुआ था. नाउ दे हैव बीन आस्क्ड इसको हेक्टोग्राम में कन्वर्ट करो. तो बच्चों हेक्टोग्राम में याद रखो, किलो से हेक्टो जाने के लिए आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो पॉइंट को भी आगे ही, जितना आगे जा रहे हैं उतना पॉइंट को शिफ्ट कर दीजिए. 1 स्टेप जा रहे हैं तो पॉइंट को 1 स्टेप फॉरवर्ड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा हेक्टोग्राम में. ऑल राइट, सो आई थिंक इसमें सबसे देखिए बेसिक ऑपरेटर्स. अब यही बात है, अब ऑपरेटर्स यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस, तो प्रीवियस क्लासेस का कंसेप्ट हर क्लास में यूज होगा. दैट्स व्हाई every single step in the maths, फिफ्थ सिक्स, आई मीन फोर्थ का फिफ्थ में काम आता है, फिफ्थ का सिक्स्थ में काम आता है. तो इट्स नॉट लाइक दैट. बार बार मैं वही रिपीट करती हूँ अपनी क्लासेस में, मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मन लगा के पढ़ा करो. चलिए, डिवीजन. डिवीजन भी कर सकते हैं, कल आई थिंक ये डिवीजन भी करवाया हुआ है आपको. 30.25 है, तो कैसे डिवीजन करना है देखो. मैंने आपको बोला था आप सबसे पहले नॉर्मल डिवीजन करना आता है तो बहुत अच्छी बात है. 5 6 30 हो गया, 3 से जा नहीं सकता था, 0 0 आ गया. अब मैं जैसे ही 2 पे जा रही हूँ ना, मुझे पॉइंट को क्रॉस करना पड़ा. देखा आपने, अब मुझे 2 को नीचे उतारना है, पर 2 को नीचे लाने से पहले आई हैव क्रॉस द डेसिमल. तो जैसे ही द मोमेंट यू विल बी क्रॉसिंग इट, आप ऊपर भी पॉइंट लगा दीजिए. अगर आपने नीचे डिविडेंड में अगर आपने उसको क्रॉस कर दिया तो आपको ऊपर भी लगाना है. ऑलराइट, फिर 2 के नहीं जाएगा, जा सकता है क्या, तो हम 5 को भी उतार देंगे, सबको पता है, और इसके 2 के बदले का 0 ऊपर. देन 5 5 से 25, तो आपके पास आ गया 6.05. ऑल राइट, समझ में आया. अब इसके लिए नॉर्मल डिवीजन तो आपको सेकेंड क्लास में जाना पड़ेगा सीखने के लिए, थर्ड क्लास में भी जा सकते हैं. ओके, तो देखिए 5 की टेबल में 3 नहीं जाता तो हमने 30 ले लिया. ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप है. ओके, नाउ ऐड 25 लीटर दिस टू दिस. तो कल भी बताया था क्या करते हैं, ऊपर लीटर लिख दीजिए, फिर मिलीलीटर लिख दीजिए, लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, फिर लीटर के नीचे लीटर, मिलीलीटर के नीचे मिलीलीटर, एंड दैट्स इट. ऐड कर दीजिए, कैरी आ रहा है तो लगा दीजिए, नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई कन्वर्जन की कुछ की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली. अगर वो 999 से ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इधर आके 1 लीटर ऐड हो जाएगा. बताया था ना. यस, चलिए. अ कंटेनर हैज इतना ml ऑफ वाटर, दैट इज 2550 ml. हाउ मेनी लीटर्स एंड मिलीलीटर, सो दैट देखो एक बार कितना लीटर ऑफ वाटर इज इन द कंटेनर, कितना लीटर और कितना मिलीलीटर. देखो ये ऑलरेडी मिलीलीटर में दिया हुआ है, ऑलरेडी मिलीलीटर में दिया हुआ है. ठीक है, दिस हैज बीन गिवन इन मिलीलीटर. तो आपको इसमें लीटर और मिलीलीटर को बताना है. तो देखो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए, देखिए मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितना स्टेप आना पड़ता है, 3 स्टेप. यस,
यहाँ पे सेंटीलीटर होता है, यहाँ पे क्या होता है, डेसीलीटर होता है, और फिर लीटर होता है। तो कितने स्टेप आ रहे हैं, अब 3 स्टेप, तो 3 स्टेप आ रहे हैं, तो कितना कितना पॉइंट, पॉइंट कहीं नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट को कितना मूव कर देंगे, 1 2 3, तो 2.550 मीन्स 2 तो लीटर हो गया, और ये जो पॉइंट के बाद वाला ऑब्जेक्ट है, जो नंबर्स है वो मिलीलीटर बच जाएंगे। ओके, होता है ना 4.5, अगर मैंने बोला 4.5 kg, तो इसका मतलब ये तो केजी है और ये 5 क्या है, ग्राम। ओके, चलिए, रोहन bought a 50 liter container of oil. He used 44 liter 300 ml of it. 44 liter 300 ml of it. How much oil is left? कितना बचा हुआ था? तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको वही बोला है, लीटर और मिलीलीटर। बहुत तरीकों से कर सकते हैं, अगेन आई विल बी यूजिंग द सिंपलेस्ट वन। इसमें मिलीलीटर कुछ नहीं है, 0 0 लगा दीजिए, और यहाँ पे क्योंकि 44 था और यहाँ पे 300 था, तो बस अब आप क्या करेंगे, अब आप कैरी ले लीजिए, दैट्स इट। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप 50 लीटर को आप पहले 49 लीटर और फिर 1000, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप पहले इसको 49 लीटर और इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर इसमें से 44 माइनस कर दीजिए और इसमें से 300 कर दीजिए, आंसर विल बी द सेम। आप इस मेथड से करें या इस मेथड से करें, इट नथिंग मैटर्स, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप यहाँ से 1 कैरी यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ 49 ही बचेगा। ऑलराइट, समझ में आया? तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, इधर आप 50 लीटर्स को आप कन्वर्ट कर दीजिए 49 लीटर और 1000 मिलीलीटर में, फिर आप लीटर से लीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मिलीलीटर से मिलीलीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और अगर आप डायरेक्टली भी ऐसे करते हैं 50 0 0 0 और 44 300, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो आपको कैरी फॉरवर्ड लेना पड़ेगा, कैरी को कैरी ले जाना पड़ेगा, तो तब भी आंसर सेम ही आएगा। ऑलराइट, दोनों मेथड से हो सकता है, ठीक है। नाउ श्रद्धा नीड्स 6 कंटेनर व्हिच कैन होल्ड दिस मच ऑयल, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ईच कंटेनर। ठीक है, तो ईच के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। अब डिवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा टोटल को लीटर्स में, ठीक है। तो ऑब्वियसली 15 लीटर दिया है, तो आप इसको 15.6 ऐसे लिख सकते हैं, और फिर आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, ऑलराइट, कर सकते हैं ना 6 से डिवाइड। देखिए 6 15 की टेबल में नहीं जाता है, तो आप करेंगे 6 2 12, ऑलराइट, फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर आप 6 को उतारेंगे, बट द मोमेंट आपने 6 को नीचे लेकर आए, आपने किसको क्रॉस किया, डेसिमल को क्रॉस किया, तो आप डेसिमल भी इसमें लगा देंगे, फिर आगे आपका 6 6 36, क्योंकि लास्ट में दीज सब 0 0 आ रहा है, लास्ट में 2 0 बचे थे, तो यहाँ पे ऐसे आंसर आ जाएगा। ओके, सो पॉइंट के पहले वाला लीटर और पॉइंट के बाद वाला मिलीलीटर। If the cost of 1 liter of cough syrup is itna, find the cost of 500 ml. This is something good. 1 लीटर की कॉस्ट इतना है, तो 500 ml की कितनी हो जाएगी, तो 1 लीटर का मतलब कितना है, 1 लीटर का मतलब आपके पास 1000 ml की है, 480.40 पैसा, तो आप 1 मिलीलीटर की निकाल लीजिए, 1 मिलीलीटर का हो जाएगा 480.40 अपॉन 1000, ठीक है, और फिर आप इसको 500 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। या आपको 1 लीटर की दी हुई है, आप इसको 1 लीटर में कन्वर्ट कर देंगे, तो 500 ml को अगर आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 500 लीटर को, सॉरी मिलीलीटर को लीटर में करना है, तो कितना कन्वर्जन, 500 था, पॉइंट लास्ट में खुद लगा लेते हैं हम अपनी मर्जी से, क्योंकि हमें इजी करना है, तो बस पॉइंट को कितना शिफ्ट करना है, मिलीलीटर से लीटर आने के लिए उसको पहले उसने क्रॉस किया, किसको, जल्दी से बता दो, यहाँ पे था, तो पहले क्रॉस होगा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, ठीक है, पहले वो क्रॉस करेंगे हम किसको, सेंटीलीटर को, देन डेसीलीटर को, और देन फिर आप मल्टीप्लाई करके इजीली आंसर निकाल सकते हैं। ओके, क्लियर है। अ कार कैन ट्रेवल 270 किलोमीटर ऑन 10 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज नीडेड फॉर अ जर्नी ऑफ 500 किलोमीटर। ये भी आपको स्टार्टिंग में ही ऐसा क्वेश्चन कराया था, 270 किलोमीटर के लिए 10 लीटर्स है, तो 270 किलोमीटर के लिए आपके पास 10 लीटर पेट्रोल है, आपको 500 किलोमीटर के लिए निकालना है, ये देखो 500 किलोमीटर के लिए निकालना है बच्चों, तो 1 किलोमीटर का यूनिटरी मेथड, 1 किलोमीटर का 10 अपॉन 270, ऑल राइट, और 500 किलोमीटर का, अब बोलो मैम 10 अपॉन 270 तो हम नहीं कर सकते,
तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको 500 किलोमीटर से आप ऐसे कर देंगे। फिर आप देखिए 0 से 0 कैंसिल, फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, पॉइंट में आंसर आएगा, डायरेक्ट आप डिवाइड कर लेंगे। ओके, ये देखिए पॉइंट में आंसर आ रहा है, आप पॉइंट में इसको करेंगे सॉल्व। ओके, ठीक है। तो 270 किलोमीटर 10 लीटर्स में है, तो 500 किलोमीटर कितने में होगा, कर सकते हैं ना इजीली। चलिए, दैट्स वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग वे मोर, इनमें से किसका वेट 13 पैकेट्स ऑफ दिस ईच एंड 169 ऑफ दिस ईच, तो क्या करेंगे दोनों को पहले। अब देखिए हम नहीं बता सकते ना, क्योंकि 13 पैकेट्स हैं और ये अलग अलग है और दोनों का ग्राम भी। तो आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जिसका ग्राम ज्यादा आएगा वो ज्यादा वेट का हो जाएगा ऑब्वियसली। और देख के भी पता चल सकता है क्या, नहीं, क्योंकि देखो ये 325 है और ये 25 है, हो सकता है ये 25 के कितना टाइम्स है, ऐसे भी देख सकते हैं। ऑलराइट, बोथ आर इक्वल, बोथ इक्वल आ जाएंगे। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो ये जो 25 होता है ना, ये देखो ये जो 25 होता है, ये 13 × 25 होता है, और ये जो 169 होता है, ये 13 × 13 होता है। तो दोनों जगह एक्चुअली 13 13 25 आ रहा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल सी दैट आंसर इज सेम। Which of the following is true? 1 kg में they are saying this 500, अच्छा ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, ये 500 में 200 300 400 500, तो आप ये देख सकते हैं, आप मुझे आंसर बताइएगा इसका। 500 ठीक है, 2 kg में 1 kg है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप देख के मुझे बता सकते हैं कौन सा वाला बिल्कुल सही है। देखो 2 kg है, ठीक है, ये 2 kg है, 1 kg है, 500 ग्राम है और ये 1 kg, ठीक है। तो आप इसको बताएंगे। Okay, so what we have learned today, we have learned all about the units of volume, क्या होती है, लीटर, मिलीलीटर, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, सब होती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम घर पे यूज करते हैं दैट इज लीटर। ओके, लीटर यूज करते हैं और मिलीलीटर यूज करते हैं, दो चीजें जो है हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अदरवाइज किलो, हेक्टो तो बहुत मतलब बहुत रेयर यूज होता है डे टू डे लाइफ में होते हैं। दे आर द यूनिट्स, डेफिनेटली दे विल बी यूज, वो यूज होते हैं कहीं, बट डे टू डे लाइफ में हम सिर्फ लीटर और मिलीलीटर यूज करते हैं। राइट, so what you have to learn the basic things, बस आपको ये लाइन याद रखनी, किंग हेनरी डाइड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क, दैट्स इट। अगर आपको ये लाइन रहेगा तो आप मेजरमेंट का कोई भी कन्वर्जन बहुत इजीली कर सकते हैं, और इसमें यूनिटरी मेथड्स भी आने चाहिए। बहुत सारा दिया है, 1 का निकालना है तो डिवाइड, 1 का दिया है, बहुत सारे का निकालना है तो मल्टीप्लाई। ओके, चलिए, I hope you like the session. If it is like so you can subscribe to channel, hit the like button. Okay, and press the bell icon also so that you will never miss any update. So bye bye kids, take care, keep learning, keep studying, have fun also, but practice bhi karni hai. Bye bye, take care, to the next class.